Started. Good afternoon, all of you. Today we are going to organize a quiz competition under Ek Bharat Shresth Bharat program, and the topic of the quiz is Karnataka state, which is our pairing state this year. In this quiz competition we have three teams, A, B and C. So these teams are going to introduce themselves. First, team A. Good morning, I am Vikas, student of class 12 Humanities. Good morning, ma'am. My name is Saurabh Yadav. I study class 12 B. Survey of class 12 humanities. Myself Komadat from class 12. Myself Arjun Devi from class 12. Now we are going to start the quiz competition. हर टीम से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो उसका आंसर देंगे. अगर आंसर देंगे तो उन्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर वो आंसर नहीं कर पाए तो सेम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टीम को पास हो जाएगा. ठीक है, तो हम अपना क्विज कंपटीशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. किस सब्जेक्ट के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है टीम ए के लिए. इन विच ईयर मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका. और एक बार मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से ही आपको आंसर करना है. सो पहला क्वेश्चन आपने सुन लिया. इन विच ईयर मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका. मेरे पास आ रहे हैं. चलिए आंसर बताइए. टीम ए. मेरे बैठो. Ma'am, option. ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए इज 1973, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी 1968. Ma'am, A 1973. A 1970. So 1973 is the correct answer. So they will get 10 marks. Let me कर सकते हैं आपको. तो A टीम को 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स. Now question for second group, B group. On which of the following rivers is the Jog Falls, which is also known as Garasopa Fall, is situated? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बताइए. इसके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए इज हेमावती रिवर, ऑप्शन बी इज तुंगभद्रा रिवर, ऑप्शन सी इज पेरियार रिवर एंड ऑप्शन डी इज श्रावती रिवर. Option D, Sharavati. ऑप्शन डी श्रावती रिवर. So option D is correct answer. Jog Fall is situated on the river Shravati. When they will get 10 marks. Okay. Now question for group C. Question is, who is known as the founder of Vijayanagar Empire? Who is known as the founder of Vijayanagar Empire? And your options are: first option is Harihar I, option B Krishnadev Rai, option C Mayur Verma and option D Dev Rai I. Option A, Harihar. Option A Harihar. Harihar. So option A is the correct answer. Founder of Vijayanagar Empire is Harihar I. Along with his brother Bukka, he founded the Vijayanagar Empire. So group C will also get 10 marks. Now question for group A. Listen the question very carefully. Which sea is located on the west side of Karnataka? Which sea is located on the west side of Karnataka? Option A is Mediterranean Sea. Option B is Arabian Sea. Option C is Caspian Sea. And option D is Bay of Bengal. B Arabian Sea. B Arabian Sea. So the sea located on the western side of Karnataka is Arabian Sea. So they have given the correct answer. So when they will get 10 marks, group A. Yes, very good. Now question for group B. मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन की है कर्नाटका स्टेट के ऊपर. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी. आप ये बताइए, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे सरकार द्वारा किस लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है? योर ऑप्शंस आर कोंकणी. ऑप्शन ए इज कोंकणी, ऑप्शन बी इज टुलू, ऑप्शन सी इज कोडावा, and then option D is
कन्नडा। ओके, बहुत ही स्पॉन्टेनियस आंसर था ग्रुप बी का। तो कन्नडा जो है इज द करेक्ट आंसर एंड इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। So ma'am, they will get 10 marks. Now, question for group C. Group C, आप ये बताइए, आपने आदि शंकराचार्य जो है उनका नाम सुना होगा, ठीक है? सुना है आपने? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, आपने अभी सुन लिया। आदि शंकराचार्य established his first of 4 मठास at which place in कर्नाटका? उन्होंने भारत में 4 मठ की जो है स्थापना की थी, उसमें से कर्नाटका में वो कौन सी जगह है जहाँ पे उन्होंने मठ की स्थापना की थी? आपकी हिस्ट्री सिलेबस में है ये, चलिए शायद आप जानते भी होंगे। तो बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए इज श्रृंगेरी, तुमकुर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज बेलगांव एंड ऑप्शन डी इज मैसूर। श्रृंगेरी, तुमकुर, बेलगांव एंड मैसूर। बी मैसूर। चलिए अब इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं जो है किसी भी ग्रुप को ये मौका दे रही हूँ कि आप हाथ खड़ा करके मुझे ये बता सकते हैं कि आंसर सही है या गलत, और अगर गलत है या सही है तो क्या उसका आंसर होगा, अगर गलत है तो सबसे पहले सुरभि जो है ग्रुप बी से उन्होंने हाथ खड़ा किया था, तो आप बताइए सुरभि। आंसर इन्होंने कहा कि रॉन्ग है इसका, जो ग्रुप सी ने बताया, तो ग्रुप सी को मिलेंगे 0 नंबर। हाँ, इसका करेक्ट आंसर श्रृंगेरी। ओके, श्रृंगेरी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने अपना एक मठ जो है एस्टेब्लिश किया था। चलिए इनको जो है आप जो है, हाँ मैम 10 मार्क्स इनको आप जो है दे दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप ए। In terms of area, Karnataka is the dash largest state in India. अगर हम क्षेत्र देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से कर्नाटका भारत का किस नंबर पे जो है सबसे बड़ा राज्य है? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, A 5th, 6th, 7th और 8th। 5th, 6th, 7th और 8th। मैम 5th। किसी को इसका आंसर पता है? अब मुझे लगता है सही है गलत, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो क्या आप दोनों टीम्स में कुछ कंफर्म कर सकता है? 7। तो बी टीम ने अगेन बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो यस, वेरी गुड। ग्रुप ए को 0 नंबर मिलेंगे और ग्रुप बी को मिलेंगे 10 मार्क्स। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना जो है एक जो भी उन्होंने ज्योग्राफी में पढ़ा है, बहुत अच्छा ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई है, तो उसका आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए अगेन। तो ग्रुप बी आप मुझे ये बताएंगे, आपने गोल गुम्बज नाम सुना होगा, तो गोल गुम्बज कर्नाटका के किस जो है सिटी में लोकेटेड है? इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका गोल गुम्बज इज लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर देवांगिरी, ऑप्शन बी रायचूर, ऑप्शन सी गुलबर्ग एंड ऑप्शन डी इज बीजापुर। बीजापुर करेक्ट आंसर। बीजापुर इज द करेक्ट आंसर वेयर गोल गुम्बज इज लोकेटेड। तो दे विल गेट 10 मार्क्स। अभी तक जो है ग्रुप बी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो है लीड ले रही है दोनों टीमों से, ग्रुप ए एंड सी से, और ग्रुप सी को काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो नाउ ग्रुप सी, आपके लिए बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? आई एम गिविंग द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज बेंगलुरु, ऑप्शन बी इज बेंगलुरु, ऑप्शन डी इज विजयनगर एंड ऑप्शन सी बताया ना विजयनगर, and option D is Thiruvananthapuram. D Bengaluru. So this is the very correct answer, और ग्रुप सी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो they will get 10 marks। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ए।
जिसमें जो है विकास और सौरभ। विकास एंड सौरभ ग्रुप, आप ये बताइए विच कर्नाटका सिटी इज पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन फॉर जैन पीपल, ऑलराइट, फॉर जैनिज्म, फॉर पीपल हु फॉलो जैनिज्म, जैन रिलीजन, for them which city of Karnataka is a very famous pilgrimage place destination? Option A Bellary, option B Shravan Belagola, option C Shorapur, and option D Tumkur. A Bellary. Bellary, option A मैंने कहा था Bellary. Yes ma'am. So Bellary is the correct answer according to you. Yes ma'am. ओके, और कोई बताना? अंजलि ने हाथ उठाई है, संजय जी आप बताइए। हैं बी क्या है? स्टफ है। श्रवण बेलागोला, यस करेक्ट आंसर है। श्रवण बेलागोला इज द करेक्ट आंसर। ये जो है जैनिज्म जो है धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। सो ग्रुप सी दे विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, 10 मार्क्स उनको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन फॉर ग्रुप बी। यस ग्रुप बी, आप मुझे ये बताइए who was the governor of India when the fourth Anglo-Mysore war was fought? क्वेश्चन आपने सुन लिया। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स। Option A, Lord Wellesley. ऑप्शन ए Lord Wellesley. Lord Wellesley. So Lord Wellesley is the correct answer and they will get 10 marks. Now question for group C. Group C, आप ये बताइए मुझे who was the first person to receive Bharat Ratna award from Karnataka? कर्नाटका से वो कौन जो है पर्सन जिसको सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड भारत में मिला है? ऑप्शन ए गिरीश कर्नाड, ऑप्शन बी CNR राव, ऑप्शन सी भीमसेन जोशी और ऑप्शन डी विश्वेश्वरैया। ऑप्शन Option D. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बता सकते हैं क्या है? विश्वेश्वरैया। आप लोगों को क्या लगता है, जो ऑडियंस है इनका आंसर सही है? सही है, चलिए विश्वेश्वरैया का नाम आपने कहाँ सुना है? कभी सुना है विश्वेश्वरैया का नाम? कौन थे ये? जैसे उन्होंने कहा कि विश्वेश्वरैया को सबसे पहले भारत रत्न मिला, कर्नाटका के वो पहले पर्सन है। विश्वेश्वरैया जो है वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक आपने आयरन एंड स्टील प्लांट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वो उन्हीं के नाम से रखा गया है, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। देखना आप ज्योग्राफी में आता है, बुक में है, ठीक है। फिर वो मिलते हैं 10 मार्क्स। अब एक लास्ट राउंड आपका बचा हुआ है, वो हम लोग जो है इसको खत्म करते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर ग्रुप ए, which is the state flower of कर्नाटका? कर्नाटका का जो राज्य पुष्प है उसका क्या नाम है? रोज, ऑप्शन ए इज रोज, ऑप्शन बी लिली, ऑप्शन सी मैरीगोल्ड और ऑप्शन डी लोटस। D लोटस। लोटस, तो कमल जो है लोटस, ये कर्नाटका का राज्य पुष्प है। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इनको मिलते हैं 10 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप बी। यस ग्रुप बी, आप ही बताइए विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी, ऑप्शन ए इज कावेरी, ऑप्शन बी इज हेमावती, ऑप्शन सी इज कृष्णा एंड ऑप्शन डी इज घाट प्रभा। यस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कावेरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कर्नाटका। सो दे विल गेट 10 मार्क्स। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज इज फॉर ग्रुप सी। When was the first Anglo-Mysore War was fought? Option A 1855, 1870, 1716
और 1767? D, 1761. आप बताना चाहेंगे इसका आंसर सही है या नहीं? आपने पढ़ा है? आंसर इनका करेक्ट है, सो दे विल गेट 10 मार्क्स। तो आपका जो क्विज है वो खत्म होता है, ठीक है। अब मैम आपको इसका रिजल्ट बताएंगी कि किस जो ग्रुप ने कितने मार्क्स स्कोर किए। टीम ए ने लिए 30 मार्क्स, टीम बी ने लिए हैं 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, ठीक है। और टीम सी ने लिए हैं 50 मार्क्स। 50 नहीं का भाग है, 50 क्वेश्चन है। हाँ, तो विनर है टीम बी। आपको कोई प्राइस भी नहीं मिल रहा है। सो ये जो हमारी टीम है, खुशी एंड सुरभि, दे आर द विनर्स। टीम बी इज द विनर। A huge round of applause for them. Thank you, all of you.